सज्जनों, भारत के माननीय राष्ट्रपति जी माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं इस सभागार में। और अब माननीय राष्ट्रपति जी आपकी अनुमति चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करने की तरफ। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। और आप सभी को नमस्कार। निर्वाचन आयोग की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी का अभिनंदन आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में, जब हम सब यहीं सम्मिलित हुए हैं आज यहाँ पर हमारा 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की तरफ। So wishing you all, ladies and gentlemen, a very happy 11th National Voters' Day. And this very date, the 25th of January, holds a double significance for the Election Commission of India. For it was on this very date, way back in the year 1950, that the Election Commission of India was established. And then on this very date in 2011, in order to highlight the very importance of voters in the electoral machinery, the Commission decided to dedicate this day and date to the voters of the country. And since then, we have also been observing the 25th of January as the National Voters' Day, a day towards creating awareness among the masses about the very value and importance of their vote, and that every vote matters, every vote counts for and in a healthy democracy. स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हर एक वोट ज़रूरी है। तो मतदाता दिवस देखा जाए हमारे लोकतंत्र का पर्व है, और 2021 के इस पर्व में आप सभी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार जी को उनके स्वागत संदेश के लिए। Honorable President Shri Ramnath Kovind ji, Honorable Law Minister Shri Ravi Shankar Prasad ji, Honorable Chief Election Commissioner Shri Sunil Arora ji, former Chief Election Commissioners, Election Commissioner Shri Sushil Chandra ji, former Election Commissioners, all electors, heads and representatives of political parties, award winners, distinguished guests, ladies and gentlemen. सर्वप्रथम मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपने इस व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर इस समारोह की शोभा बढ़ाई है और हमें अनुग्रहित किया है। सर, आपकी गरिमामयी उपस्थिति ने न केवल इस समारोह में, इस हॉल में उपस्थित प्रतिभागियों को प्रेरित किया है, बल्कि देश भर में राज्यों से लेकर मतदान केंद्र तक जहां जहां इस नेशनल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह मनाया जा रहा है, आपने उन सबको भी प्रेरित किया है। महामहिम राष्ट्रपति जी, हम आपके आभारी हैं। Warm welcome to Honorable Shri Ravi Shankar Prasad ji, Union Law Minister. His ministry has always been supportive, not only in this initiative, but whatever Election Commission has proposed through the Law Ministry. And sir, it's not by coincidence, but by design, that the two days, Election Commission's Foundation Day, which is known as now National Voters' Day, and the Republic Day, both celebrating the resolve of citizens and the spirit of democracy, fall on two consecutive days. That is today, 25th January, and 26th January tomorrow. Both days include a feeling of overwhelming pride in the heart of every Indian citizen. मैं आज इस अवसर पर उन सभी 90 करोड़ भारतीय मतदाताओं का स्वागत करता हूं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के विभिन्न माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, जिनके भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों प्रत्येक चुनाव और अधिक मजबूत हो। भारतीय मतदाताओं ने मतदान केंद्र में लाइनों में खड़े होकर बड़े ही जागरूक ढंग से अपनी बारी का धूप वर्षा किसी भी समय में इंतजार करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करके हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता व दूरदर्शिता का परिचय दिया है। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं और इस मतदान दिवस पर उनका स्वागत करता हूं। देवी और सज्जनों, इस समय पूरी दुनिया में जितने युवा लोग हैं, उतने मानव इतिहास में कभी नहीं हुए।
मैं उन सभी नए पंजीकृत मतदाताओं का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, जो चुनाव प्रणाली में सक्रिय रूप से भाग लेकर देश के भविष्य का निर्माण करेंगे। Women voters have participated enthusiastically in elections. Sir, during 2019 elections, 23 states recorded higher female voter turnout as compared to male. I use this opportunity platform of NBD to welcome all our women voters. Sir, persons with disabilities encounter various barriers to their full-fledged participation in electoral process and practices. I welcome all our PWD voters and with the resolve of the Commission to further provide more and more amenities to them to facilitate their participation in the election process. I'll fail in my duty if I do not welcome the senior citizens, whose august presence at the polling station is a great source of inspiration to everybody, to millions of voters, and also a motivation to the Commission to make our voting procedures far more easier and also extend facilities to them to cast their vote from the comfort of their homes. After voters, the most important stakeholders in the election process are the political parties. The Commission has always considered willing adherence to the norms and standards set forth under electoral system by the political parties as critical. I extend a very, very warm welcome to heads and representatives of the political parties present here and also connected to us through the video conferencing down. The far-flung and inaccessible areas and in contribution in strengthening democratic values. Media of it in all dimensions. I welcome the members of the media to this celebration. सर, भारत जैसे भौगोलिक और भाषाई रूप से विविध देश में चुनावों का आयोजन करना एक अत्यंत कठिन कार्य है। चुनावी प्रक्रिया का आकार और जटिलता कल्पना से परे है। फिर भी प्रत्येक चुनाव निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का पालन करते हुए इतने सहज ढंग से आयोजित किया जाता है जैसे कि एक कोई कार्यरत घड़ी। सब वर्ष 2019 में आम चुनाव में 10 लाख से ज़्यादा मतदान केंद्र थे। लगभग 1 करोड़ से अधिक चुनाव कर्मियों द्वारा अत्यंत परिश्रम के साथ चुनाव कार्य पूरा किया जाता है। आज हुए हैं, हम सभी ने समाचार पत्रों और टीवी में चुनावी मतदान कर्मियों के ऐसे दृश्य देखे हैं जो ईवीएम मशीन्स, बड़े बड़े कागज लेके पैदल और दूर दराज इलाकों में या नावों से या कभी-कभी म्यूल्स पर भी जाते देखे गए हैं। ये मतदान केंद्र अत्यंत दुर्गम स्थानों पर भी हैं। मैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस अवसर में यहाँ उपस्थित और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एनबीडी में भाग लेने वाले सभी चुनाव कर्मियों का भी स्वागत करता हूँ। In order to instill confidence among all section of voters, millions of security forces of police, state police and central parallel military forces are deployed in elections. Our greetings to all our security personals and I welcome all of them to this National Voter Day. मैं पुणे महामहिम राष्ट्रपति जी, ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर्स, यहाँ उपस्थित सभी और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग ले रहे सभी गेस्ट का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। और अब मैं इस मोमेंटस ओकेजन पर आमंत्रित करती हूँ, सादर निवेदन करती हूँ माननीय राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी से कि अपनी प्रेरणामयी वाणी से हम सभी का मार्गदर्शन करें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित निर्वाचन आयोग के अन्य अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, हमारे जीवंत लोकतंत्र के संचालन में चुनाव प्रक्रिया की प्रमुख भूमिका है। देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के संवैधानिक दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन करने वाले भारत निर्वाचन आयोग के 72वें स्थापना दिवस पर मैं सभी पुरस्कार विजेताओं
एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। चुनाव प्रक्रिया की सफलता का आधार हमारे जागरूक मतदाता हैं। सभी मतदाताओं को जागरूक बनाने और मतदान प्रक्रिया में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य को लेकर वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। आज 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मैं सभी मतदाताओं को, विशेषकर हमारे उन युवा मतदाताओं को बधाई देता हूं जिन्हें पहली बार मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ है। आज से आपको भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में और देश का भविष्य तय करने में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सबको मेरी बहुत बहुत बधाई। भारत निर्वाचन आयोग की यात्रा एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत की यात्रा से ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को आरंभ हुई थी। निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया को प्रभावी बनाए रखने के लिए समुचित उपाय करता रहा है। सशक्त निर्वाचन तंत्र के निर्माण के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग ने पूरी दुनिया के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया है। देवी और सज्जनों, भारत में गणतांत्रिक प्रणाली का समृद्ध इतिहास रहा है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान के माध्यम से रोपे गए लोकतंत्र के पौधे की जड़ें लगभग 2500 वर्ष पुरानी गणतंत्र की मिट्टी से पोषण प्राप्त कर रही हैं। संभवतः इसीलिए आज पूरी दुनिया में जब लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमजोर होते जाने की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, तब भारत में लोकतंत्र मजबूत होता जा रहा है। वैशाली, कपिलवस्तु और मिथिला की परंपरा से भारत ने यह सीखा है कि शासन पर समाज के किसी एक वर्ग या वंश का एकाधिकार नहीं होता है। लोकतंत्र में लोक यानी जनता की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। गांधी जी के ग्राम स्वराज से प्रेरित हमारे संविधान के पंचायती राज में भारत की इसी परंपरा की सहज अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। भारत की चुनाव प्रक्रिया के सफल संचालन से प्रेरित होकर विश्व के अनेक देशों ने हमारी चुनाव प्रणाली का अध्ययन करने में रुचि दिखाई है। कोविड महामारी के दौरान भी सुगम, समावेशी एवं सुरक्षित चुनाव कराने के अपने ध्येय के अनुरूप निर्वाचन आयोग ने विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किए। अपनी ज्ञान संपदा को साझा करने की हमारी परंपरा के अनुरूप भारत निर्वाचन आयोग ने सितंबर 2020 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में 106 देशों तथा 16 सहभागी संगठनों के साथ अपने अनुभव साझा किए। विश्व भर में लोकतंत्र को मजबूती देने के ऐसे ही सराहनीय प्रयासों को देखते हुए सितंबर 2020 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज का अध्यक्ष बनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लगभग 75 वर्षों के भीतर ही भारत लोकतंत्र के एक विश्वव्यापी आदर्श के पोषक के रूप में उभरा है। इस उपलब्धि में निर्वाचन आयोग के शीर्षस्थ अधिकारी से लेकर देश के छोटे से छोटे गांव में बसे साधारण नागरिकों का अमूल्य योगदान है। देवी और सज्जनों, आज इस अवसर पर मैं आप सभी को स्मरण कराना चाहूँगा कि हम सभी को मतदान के बहुमूल्य अधिकार का सदैव सम्मान करते रहना चाहिए। मतदान का अधिकार कोई साधारण अधिकार नहीं है। दुनिया भर में मतदान के अधिकार के लिए लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। प्रायः सरलता से प्राप्त उपलब्धियों का मूल्य जल्दी समझ में नहीं आता। संविधान सभा के सदस्य के रूप में अग्रणी संविधान वेत्ता अल्लाडी कृष्णस्वामी अय्यर ने वयस्क मताधिकार को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता का प्रमुख आधार बताया था और इस ऐतिहासिक कदम का महत्व समझाते हुए कहा था, इट मे बी स्टेटेड that never before in the history of the world has such an experiment been so boldly undertaken, unquote. अमेरिका जो विकसित देशों की सूची में अग्रणी रहता है और जनतंत्र का प्रमुख उदाहरण माना जाता है,
वहाँ भी अनेक दशकों के संघर्ष और लोगों के अटूट साहस एवं धैर्य के बल पर मतदान का अधिकार लोगों को प्राप्त हो सका था। ब्रिटेन में भी महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त करने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। आज़ादी से पहले भारत की स्थिति भी मताधिकार के मामले में अन्य देशों से बहुत भिन्न नहीं थी। हमारे देश में भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 के द्वारा चुनिंदा लोगों को ही मतदान का अधिकार दिया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत के हमारे संविधान में आरंभ से ही 21 वर्ष या अधिक आयु के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। बाद में इस आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। योग्यता, धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर कोई भेदभाव न करते हुए हर पुरुष या महिला, अमीर या गरीब को मतदान का अधिकार है और हर व्यक्ति के मत का महत्व भी समान रखा गया है। इसके लिए हम सब अपने संविधान निर्माताओं के ऋणी हैं। देवी और सज्जनों, पिछले वर्ष कोविड महामारी के दौरान बिहार विधानसभा, जम्मू कश्मीर व लद्दाख में सफल एवं सुरक्षित चुनावों का संपन्न होना हमारे लोकतंत्र की असाधारण उपलब्धि है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि चुनाव आयोग ने सुगम, समावेशी और सुरक्षित चुनाव आयोजित करने के लिए अनेक नवाचारी और समयानुकूल उपाय किए। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में दिव्यांगजनों, 80 वर्ष से ऊपर के वृद्धजनों, आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाताओं अथवा कोविड से संक्रमित या क्वारंटीन में रखे गए मतदाताओं को डाक मतपत्र अर्थात पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई। महिलाओं की सुविधा के लिए महिलाओं द्वारा प्रबंधित मतदाता केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई। इन्हीं विशेष प्रयासों के कारण बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए आयोजित चुनाव में कोविड महामारी से जुड़े प्रतिबंधों एवं कठिनाइयों के बावजूद मतदान का प्रतिशत 57.05 तक पहुंच गया, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत के लगभग बराबर था। इस सराहनीय उपलब्धि के लिए निर्वाचन आयोग, मतदान तंत्र से जुड़े सभी लोग और हमारे जागरूक मतदाता विशेष बधाई के पात्र हैं। मुझे बताया गया है कि चुनाव आयोग ने मतदाता संपर्क बढ़ाने के लिए डिजिटल संचार सहित मल्टीमीडिया का उपयोग बढ़ाया है। चुनाव के दौरान कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल तथा दिशा निर्देशों के बारे में जागरूकता फैलाने, पंजीकरण कराने तथा मतदान में भाग लेने हेतु मतदाताओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से संचार माध्यमों का अधिकाधिक उपयोग किया गया। देवियों और सज्जनों, कोरोना महामारी अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। 2021 में भी निर्वाचन आयोग को अनेक चुनावों का आयोजन करना है। आयोग ने मतदाताओं को सेफ, एम्पावर्ड, इन्फॉर्म्ड एंड विजिलेंट बनाने का ध्येय तय किया है। नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के विशेष अभियान चलाया गया। डिजिटल इंडिया के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए नवीन उपाय किए गए। मुझे बताया गया है कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 2021 तक लगभग 27 लाख नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। अब हमारे देश में मतदाताओं की संख्या लगभग 92 करोड़ से अधिक हो गई है, जिनमें महिलाओं की संख्या लगभग 44 करोड़ से ऊपर है। भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मतदान के अधिकार को सर्वोपरि माना था। इसलिए हम सभी का, विशेष रूप से पहली बार मतदान का अधिकार प्राप्त करने वाले हमारे युवाओं का दायित्व है कि वे न केवल स्वयं अधिक से अधिक संख्या में पूरी समझबूझ के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपितु दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें। अंत में एक बार फिर मैं सभी देशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हम सब मिलकर अपने देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए